Assalamualaikum students, I am your maths teacher. Today we will continue the chapter fraction which is on page number 55. Today we will do exercise number 4 of this chapter, which is arrange the following fractions in ascending order. As you know, ascending means from smallest to greatest. सबसे पहले smallest value, फिर उससे बड़ी लास्ट में greatest value होनी चाहिए. Previously we have arranged the values which are in decimal or which are in numbers, but now we have to arrange the fractions. अब थोड़ा सा change है. Fractions are given, the values are given in form of fractions. For instance, in question number 1, the first value is 1/4, second is 1/5, third is 1/2 and fourth is 1/10. We have to compare these values and arrange in ascending order. यानी हमें इस तरह से लिखना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन आएगा, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन आएगा और लास्ट में सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा. तो अब इस तरह से तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा सबसे छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है. सो वी विल कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फर्स्ट. कैसे करेंगे? जैसे हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 3 में. एक्सरसाइज नंबर 3 में हमने पढ़ा था if the numbers are written in form of fraction and we want it to convert into decimal, we have to divide the numerator by denominator. Denominator is always divisor. Denominator यानी जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है वो उससे हमें डिवाइड करना होगा और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है उसको अंदर लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे. For instance, the first fraction is 1/4. 4 is the denominator, so 4 is the divisor. 1 is numerator, numerator अंदर जाएगा. अब 4 से हम 1 को डिवाइड करेंगे. 1 is less than 4, so 4 1s are 4 हम नहीं कर सकते. We will do 4 zeros are 0. माइनस करके 1 is the remainder, then we put the decimal point और हम एक 0 इसमें ऐड कर देंगे. It will become 10 now. 4 2s are 8, again 2 is the remainder और 0 हम इसके साथ ऐड किया. 4 5s are 20. It is completely divided. Now the answer is 0.25. 0.25 हमने इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया 1/4 के साथ. Now the second fraction is 1/5. We have to convert 1/5 into decimal. How can we do this? 5 is the denominator. Denominator is always divisor. Denominator बाहर आएगा. Numerator is 1. 1 अंदर आएगा. 5 zeros are 0. माइनस करेंगे. 1 आंसर आएगा. पॉइंट लगा के 0 लेंगे. 5 2s are 10. It is also completely divided and answer is 0.2. 0.2 is the decimal equivalent of 1/5. Third fraction is 1/2. Now divide 1 by 2 because 2 is the denominator. Denominator से divide करेंगे हम. तो 2 zeros are 0. 1 is the answer. 1 subtract होके आंसर आया 1. पॉइंट लगा के हमने 0 लिया. It become 10 now. 2 5s are 10 and the answer is 0.5. So the decimal equivalent of 1/2 is 0.5. The fourth fraction is 3/10. Now 10 is the divisor. 3 को डिवाइड करेंगे. 10 zeros are 0. सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा आंसर. पॉइंट लगाएंगे 0 ऐड करेंगे 30 हो गया. 10 3s are 30. आंसर आया 0.3 which is the decimal equivalent of 3/10. Now the comparison of decimals. It is the most important part of this exercise. इस एक्सरसाइज में जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए चारों नंबर्स, अब हम चारों को कंपेयर करेंगे. फर्स्ट डेसिमल से पहले वाला नंबर 0 है, सेकंड में भी 0 है, थर्ड में भी 0 है, फोर्थ में भी 0 है. दे ऑल आर equal. Now we have to compare the digit which is after the decimal point. अब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर को कंपेयर करना होगा. The digit after decimal point is 2 here. Again 2, then 5 है थर्ड में और फोर्थ वाले में है 3. इट्स मीन 5 और 3 तो 2 से बड़ा हो गया. हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, असेंडिंग में करना है, तो ये दो से तो कंपेयर नहीं करेंगे. इन दोनों में
में से हमें डिसाइड करना है विच इज स्मॉलेस्ट, बिकॉज फर्स्ट प्लेस में यहाँ भी 2 है, फर्स्ट प्लेस में यहाँ भी 2 है, यानी फर्स्ट प्लेस में बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम सेकंड प्लेस को कंपेयर करेंगे। व्हाट इज द सेकंड प्लेस? द digit after decimal point in second place is 5 here and nothing is here. Nothing means कुछ नहीं है, 0 है, कुछ भी नहीं है। तो which is smallest? 0.2 is smallest. ये सबसे छोटा हो गया। इसके बाद ये आएगा 0.25, सेकंड आएगा नंबर। फिर थर्ड हमारा कौन सा होगा? 0.3 उससे बड़ा है। फिर 2 से 3 से बड़ा कौन सा आ गया? 0.5. Now we have to arrange it in ascending order. So the smallest fraction is 0.2. 0.2 सबसे पहले, फिर then next is 0.25. Third one is 0.3. 3.3 से बड़ा आ जाएगा 0.5, which is greatest number. But we have to write the answer in form of fractions. ये तो हमने डेसिमल में इसलिए कन्वर्ट किया था कि हम इसे कंपेयर कर रहे थे। हमने अरेंज कर लिया आंसर, लेकिन हमें लिखना होगा फ्रैक्शन में, जिस तरह से क्वेश्चन है फ्रैक्शन में। सो 0.2 का इक्विवेलेंट क्या है फ्रैक्शन? 1/5। 0.25 का इक्विवेलेंट है 1/4। 0.3 का इक्विवेलेंट है 3/10। 0.5 का इक्विवेलेंट है 1/2. So the answer is 1/5 is the smallest value, smallest fraction. Then 1/4 is greater than 1/5. Then 3/10 is greater than 1/4, and the greatest value is 1/2. So ascending order में हमने arrange कर दिया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। So what we are doing here? We are converting the fraction into decimal first, then we compare the numbers in form of decimal that we have already done on page number 55 as well, and in last exercise we have done it comparison of 2 decimal number. यहाँ हमें 4 decimal numbers हैं जिसको compare करना है। थर्ड हमें काम ये करना है कि हमें इसको अरेंज करना है ascending order में, which is smallest to greatest. सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड फिर उससे बड़ा। Now I have done the next question, which is question number 3. It is 5/6, 5/8, 7/10, and 11/12. These are the 4 fractions. Again, what the first step is, convert the fraction into decimal equivalent. 5/6 को convert कैसे किया हमने? 5 is numerator, 6 is denominator. Denominator is always divider. So divide 5 by 6. 6 zeros are 0, 5 is the remainder. Decimal point के बाद 0 add किया, now it become 50. 6 8s are 48. 2 is remainder. Now 0 add करके it become 20. 6 3s are 18. 2 is again left. दो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कैलकुलेट करने के बाद हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे। 0.83 is the decimal equivalent of 5/6. Second fraction is 5/8. Similarly, we have to convert 5 by 8 because 8 is the denominator. 8 zeros are 0, माइनस किया, 5 is remainder. पॉइंट लगाया, 0 ऐड करके 50 हो गया, 8 6 are 48. माइनस करेंगे वैल्यू तो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 2. 0 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 8 2s are 16, 4 is the remainder. अगेन हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर कैलकुलेट करने के बाद इसको कंटिन्यू नहीं करना। दिस इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 5/8, 0.62. Next is 7/10. 7/10, 10 is the denominator. 10 से डिवाइड करना है 7 को। 10 zeros are 0, माइनस किया, 7 is the remainder. पॉइंट लगा के 0 ऐड किया, 10 7s are 70. ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, आंसर आया 0.7, which is the decimal equivalent of 7/10. 11/12 is the next fraction.
12 से डिवाइड करेंगे हम 11 को, 12 0 0, 11 इज द रिमाइंडर, पॉइंट लगा के 0 ऐड किया, इट इज नाउ 110, 12 9 108, माइनस करके आंसर आएगा 2, 0 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 12 1 12, 8 is the remainder. So the decimal equivalent is 0.91. Now these are the 4 decimals of that we have to compare. 0.83, 0.62, 0.7 and 0.91. पॉइंट से पहले सब में 0 है, they all are equal. पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पे 8 is here, 6 पे 7 और यहाँ है 9. तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6 is smallest. 6 सबसे छोटा है, यानी ये स्मॉलेस्ट वैल्यू. हमें फर्स्ट प्लेस पे ही पता चल गया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई, हमें सेकंड प्लेस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट प्लेस में हमें पता गया 6 is smallest, then 7 is greater than 6, then 8 is greater than 7, then 9 is greater than 8. अब हम इसको अरेंज कर देंगे. 0.62 is smallest value, next is 0.7, next is 0.83 and next is 0.91. But we have to write the answer in form of fraction. The fraction of 0.62 is 5/8 and 0.7 is equals to 7/10. 0.83 is 5/6. 0.91 is 11/12. So answer is 5/8, then 7/10, then 5/6 and then 11/12. Now the next question that I have done for you is question number 5. 15/16, 7/8, 2/3 and 5/15. These are the 4 fractions that we have to arrange in ascending order from smallest to greatest. 15/16 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. 15 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 0 0, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 15. पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे, नाउ इट बिकम 150. 16 9 144, जिसमें से 144 माइनस किया तो आंसर आया 6. 0 ऐड किया, इट इज नाउ 60. 16 3 48, 2 इज स्टिल रिमाइंडर. अभी भी 2 रिमाइंडर है, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे. 0.93 इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15/16. 7/8 इज द सेकंड वैल्यू. 7/8 को हम डिवाइड करेंगे 8 से 7 को. 8 0 0, 7 इज रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 8 8 64, रिमाइंडर आया 6. 0 लगाया, नाउ इट बिकम 60. 8 7 56, माइनस किया, रिमाइंडर है अभी भी 4, बट वी विल स्टॉप दिस एंड आंसर इज 0.83. द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 2/3. 3 से डिवाइड करना है हमें 2 को. 3 0 0, रिमाइंडर इज 2. पॉइंट लगाया, 0 ऐड किया, इट बिकम 20. 3 6 18, माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2. देन अगेन 0 ऐड करके आंसर ये हो जाएगा 20. 3 6 18 अगेन, 2 इज स्टिल रिमाइंडर, but we don't have to continue the division. 0.66 is the decimal equivalent of 2/3. The next is 5/15. 15 से डिवाइड करना है हमें 5 को. ऑब्वियसली 5 is less than 15, तो 1 से नहीं डिवाइड हो सकता, 0 से डिवाइड करेंगे. 15 0 0, माइनस करके आंसर आएगा 5. पॉइंट लगा के 0 ऐड किया, इट इज नाउ 50. 15 3 45, माइनस किया, अगेन 5 इज रिमाइंडर. 15 3 45 अगेन एंड 5 इज स्टिल लेफ्ट. 5 अभी भी रिमाइंडर में है, बट वी विल नॉट कंटिन्यू इट अगेन. 0.33 is the decimal equivalent. Now the comparison of 4 decimal numbers. First is 0.93, second is 0.87, third is 0.66, fourth is 0.33. Zeros are equal. पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पे 9 है, सेकंड फ्रैक्शन में फर्स्ट प्लेस पे 8,
थर्ड फ्रैक्शन में 6 है फर्स्ट प्लेस पे और फोर्थ फ्रैक्शन में फर्स्ट प्लेस पे है 3. सो 3 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. 3 सबसे छोटा है, फिर उससे 3 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा 9. सेकेंड प्लेस को हमने कंपेयर नहीं करना. अगर यहाँ दो जगह 8 आ जाता, दोनों इक्वल हो जाते जब हम कंपेयर करते, या चारों में इस तरह से होता कि फर्स्ट प्लेस पे सब एक ही नंबर हो रहा होता तो हम सेकेंड प्लेस से कंपैरिजन करते. लेकिन अगर एक ही फर्स्ट प्लेस पे ही हमें आंसर मिल गया है तो हम सेकेंड प्लेस को कंपेयर नहीं करेंगे. सो विच इज द स्मॉलेस्ट डेसिमल? 0.33 is smallest, then 0.6 is 6, then 0.87 and then 0.93. आंसर हम लिखेंगे फ्रैक्शन में. 0.33 का इक्विवेलेंट है 5/15, 0.66 का इक्विवेलेंट 2/3, 0.87 का इक्विवेलेंट है 7/8, 0.93 का इक्विवेलेंट है 15/16. So the answer is 5/15 is the smallest fraction, then 2/3, then 7/18 and then 15/16. इसी मेथड से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 6. एक्सरसाइज नंबर 4 का विच इज गिवन ऑन पेज 55. वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 6 as homework in your copy. Thank you.